हॅलो फ्रेंड्स, स्टुडंट, हाव आर यू? कशा आहात तुम्ही सर्व? मजेत? ओके. चला, आता मागच्या 5 महिन्यापासून आपली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थांबलेली आहे आणि आता आपण सुरू करतोय. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं की गुगल क्लासरूमवरती जॉईन व्हायचं आहे आणि गुगल क्लासरूमवरती जॉईन झाल्यानंतर तुम्ही तुमच्या विषयाचे सेपरेट नोटबुकसुद्धा तयार करायचे. ओके, आय होप यू डन दिस. सो आय एम सुनील वायसळ and I will teach you the subject corporate accounting for second year BCom. Okay, so in a corporate accounting for this semester we have 5 chapters. In that, first is issue of shares, in that equity shares. Second is the issue of preference shares. Third, issue and redemption of debentures. Number 4, accounts of company, final accounts of company, and number 5, profit prior to incorporation. These 5 chapter will be for you in this third semester. In that, we are going to start with the first chapter, and this is a issue of shares. What? Issue of shares. No doubt at all, you heard the words shares many times. Okay, so friends, if we look back, we came to know there is a history of business. As a civilization, there is a history of human being, as like same that there is a history of business organization. What is the history? The history is that as per the time required, as per the needs require, there is a change, there is a drastic change in the forms of business organization. We know, we studied this in 12th standard, 11th standard. There were sole proprietorship, there were also partnership, there is a cooperative society. So as like this, there are a different forms of business organization. So accounting is also different as per the business organization. If you want to make the accounts of partnership company, you have to follow the Partnership Act 1932, like this, because the nature of every business is different. This account means the issue of share. This concept is related to company organization. So before going towards the accounting treatment, we must understand some basic concept. This is a very important. So what is the first? We must understand what is a company organization. As I told you, there was a sole trader, there was a partnership, there was a cooperative society, different forms of business organization, but this is a very famous and popular form of business organization known as a company. Company, some people called as a company, some people called as a corporate also. Okay, we know East India Company from the England, नाही का, गोऱ्या लोकांची कंपनी काळ्या लोकांवरती राज्य करण्यासाठी आलेली. So in American people call corporation, in England people call company. So what is this company organization and why we are studying before going to these shares? Company is a business organization. What is first? Company is a type of business organization where people come together, to start the business, and such a business is registered under the Company Act. Simple. Any business which is registered under the Company Act, this is a company. Simple definition. What? Any business registered under Company Act, this is a company organization. Clear? Okay. Company organization. So whenever we want to start any business, we need capital. What? We need capital. Why we need a capital? क्यों चाहिए capital? So before going towards the share, we must understand the need of capital or motive of the capital. The first motive is a transactive motive. Transactive motive. Why need we capital? We need the capital for a first motive, for the first purpose, and this is an transactive motive. Means what? Means to set up a daily transact expenses, such as a salary is a routine or daily. Payment of small amounts, electricity, conveyance, salary, wages, and like this. We need capital, we need money, and this is a transactive motive.
Second, we need a capital for a speculative motive. Speculative motive. Why? If there is any opportunity, if there is opportunity in the market, we need capital. Suppose there is opportunity to purchase a business, to acquire a business, okay, to absorb a business, to purchase an investment, we need money. This is an speculative motive. Means to reap the advantage. Reap म्हणजे काय? कापून घेणे. To reap the advantage of market opportunity, we need money. We need capital. And third one is a precautionary motive. Precaution is better than cure. नहीं क्या? कोरोना में आपको सबको करना है. Okay? Precaution. So we don't know what will happen in future. We don't know what will happen in future. If there is any contingent liability arise on the business, we need to kept aside some money, and this is a precautionary motive. For that we need capital. I think you all know Kanjilal Mehta. Okay, precautionary motive. भाई का दुकान गिर गया था. Okay. So अब हम आते हैं. First we have seen company organization. Company is what? The association of person. They come together for the business, and that business is registered under the company. This is an company. After that we have seen capital. What is capital? मैं भूल गया बोलने का आपको. What is capital? Simple है भाई. Capital means amount. Capital means amount invested into business is capital. Simple. Difficult जानना है हम लोगों को. क्या है? What is the capital? Capital means the amount, पूंजी, राशि जो आपने जमा करी है, that invested into the business in a form of business. This is an capital. Okay? सो मोटिव देखिए. अभी हम लोगों को देखना है कि भाई सोर्स कौन से है, स्रोत कौन से है कि जहां से हम कैपिटल रेज कर सकते हैं. उसको एक अच्छा वर्ड है प्रोक्यूरमेंट ऑफ कैपिटल, कि भाई कहां से खड़ा कर सकते हैं. सो सोर्स ऑफ कैपिटल. सो दो सोर्स होते हैं. आई एम टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट पार्टनरशिप और एनी अदर. सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. एक होता है ओन सोर्स, मतलब खुद का. दूसरा होता है बोरोड, जिसको हम बोलते हैं डेप्ट कैपिटल, जो मैं बाहर से लोगों से उधार लेकर मेरा बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं. क्लियर? सो फर्स्ट ओन सोर्सेस. ओन मतलब खुद का. सो खुद का बोले तो कैसा? इन दैट ओन में होता है शेयर्स कैपिटल. ओन सोर्स कौन सा है? शेयर्स कैपिटल, खुद का. कौन सा है कंपनी का? उसमें दो टाइप से, एक है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंस शेयर्स. कौन सा है? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स. आई होप आई नो you are well familiar about equity share, the definition and characteristics and features you studied in 12th standard SP, right? So equity shares. अभी हमको क्या करना है इस चैप्टर में? We have to study, we have to understand the issue of shares. Which shares? Equity shares. क्या करना है इस चैप्टर में? हमें इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने हैं और उसका कोई लेजर नहीं बनाना है. वी हैव टू जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, मतलब जर्नल एंट्री बनाना है. सिंपल से जो हमारे रूल्स होते हैं, मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच हो या पुराने हमारे गोल्डन रूल्स हो, उसके आधार पर हमें क्या करना है? ये जो इश्यू होते हैं इक्विटी शेयर्स, जो इश्यू होते हैं मार्केट में आईपीओ के तहत, तो उसके हमें क्या करना है? दिस इज नॉट रिलेटेड टू सेकेंडरी मार्केट, दिस इज अ प्राइमरी मार्केट, दिस इज अ आईपीओ. ओके, सो आईपीओ के तहत जो शेयर्स इश्यू होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे सीखना है. ओके, सो यहाँ से आगे चलेंगे हम इशू ऑफ शेयर्स के बारे में. तो देखो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है. शेयर्स जो होता है उसमें क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वी आर नॉट एबल टू जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन. आप लोगों को अगर पता नहीं है ऑथोराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, you are not able to pass a simple single entry also. So you must know this. आप बोलेंगे सर ये क्या, सीधा हमको बोलो ना, लेजर बनाओ, डेबिट क्रेडिट फटाफट, लेकिन you must understand this. ये समझते तो आगे जाएंगे आपको कुछ भी समझेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम रहेगा एग्जाम में, तो प्रॉब्लम ये सब चीजें आएंगी, ये सब वर्ड्स आएंगे और इसका मतलब ही नहीं समझते,
तो यू आर नॉट एबल टू पास द जनरल एंट्री। ओके, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल सिंपल, हमारा जैसा जन्म होता है ना, जन्म होने के बाद दादा आता है, दादी आती है, आते आती है, मौसी आती है, हमारा नाम रख देते हैं कुछ तभी। ओके, जन्म होता है। सो जब कंपनी का जन्म होता है, कंपनी उभरती है, जन्म होता है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे हमारा भी रजिस्ट्रेशन किया ना, जन्म होने के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में गए, ग्राम पंचायत में गए कि हमारे यहाँ पे साहब का मतलब आए हैं तो उनका नाम लगना है, वैसा। सो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रजिस्टर्ड और विच इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे होते हैं, टीसी होता है, रेशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, बहुत सारे कार्ड होते हैं। सो कंपनी का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितने? 2। फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको मराठी में हम घटना पत्रक बोलते हैं। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में होता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो ऑथराइज कैपिटल क्या है? ऑथराइज कैपिटल मतलब द कैपिटल विच इज रजिस्टर्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर करते वक्त जो अमाउंट, जो राशि कैपिटल की उसमें दर्ज है, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। और एक बात कान खोलकर सुन लो, रजिस्टर कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते, वो प्रोसेस लंबी है, और कर सकते हैं तो क्या कह सकते, दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट। ओके, सो ऑथराइज कैपिटल, दिस ऑथराइज कैपिटल इज आल्सो नोन एज अ रजिस्टर्ड कैपिटल। व्हाई? बिकॉज दिस कैपिटल इज मेंशन दिस विथ विच दिस कंपनी इज रजिस्टर। रजिस्टर कैपिटल क्यों बोलेंगे? क्योंकि एट द टाइम ऑफ formation, at the time of registration, that capital is mentioned, that's why it is known as a registered capital. This is also known as a maximum capital. क्यों? Company is not allowed to raise capital more than authorized capital. This is why this is known as a maximum capital, or this is also known as a nominal capital. Okay? आगे आते हैं issued capital. क्या? इशूड कैपिटल। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको। सपोज कंपनी रजिस्टर्ड विद द ₹1 लाख ऑथोराइज कैपिटल, कि भाई हम 4-5 लोग एक साथ आए और हम लोगों को एक कंपनी बनाना है, हमने कंपनी बनाया और बोले कि हम वी हैव टू फॉर्म द कंपनी विद दिस अमाउंट, दिस इज एन ₹1 लाख। ओके, अभी देखो, वी डिड नॉट वांट द होल अमाउंट ऑफ 1 लाख इन अ सिंगल टाइम। हम लोग इतना पैसा अभी नहीं चाहिए, हमको धीरे धीरे चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू इशू ऑल द कैपिटल, डिपेंड्स है कंपनी को। 1 लाख इशू करना है तो 1 लाख कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं तो कम भी कर सकते हैं। सो अभी आएंगे इशूड कैपिटल। क्या है इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। क्या है, समझ रहे हो बात? इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल which is actually issued by a company for a subscription, for a subscription। मतलब कंपनी ने क्या किया, इसमें से 80,000 क्या किया, इशू किया। 80,000 इशू किया, लोगों को बोले कि हम इतना कैपिटल बेच रहे हैं, आप लोग खरीदो। ओके, इशूड कैपिटल। देन नेक्स्ट द सब्सक्राइब कैपिटल। व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? सिंपल है, subscribed capital is a part of issued capital which people agreed to taken up, agreed to taken up। suppose थोड़ा पीछे जाते हैं, 1 लाख कैपिटल था, अमाउंट ऑफ शेयर्स इज 100, अमाउंट ऑफ शेयर्स इज 100, तो कितने शेयर्स हो गए अपने? 1000, राइट? 1000 शेयर्स हो गए। तो 1000 शेयर्स है, उसमें से सपोज 800 शेयर्स हमने क्या किए, इशू किए, उसमें से सिर्फ 600 कितना हुआ, सब्सक्राइब हुआ। बात समझ रहे हो? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल मींस कंपनी इशू फॉर द पब्लिक सर्विस, लोगों को बोलेंगे आओ भाई हमारा शेयर्स ले लो। अभी उसमें से कितना सब्सक्राइब हुआ, सिर्फ 600 शेयर्स, मतलब 60,000 का कैपिटल। अभी कंपनी बोली हमें 60,000 नहीं चाहिए, तो कंपनी डिमांड्स ओनली 50,000
capital. This is a called up capital. Called up capital means what? The amount which is called by a company from a public. जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको बोले कि आप सिर्फ कितना भेजो, हमें 50,000 का ले लो, उनसे ही पैसे बुलाया, उनको बोलते हैं कॉल्ड अप. इसके बाद में आता है पेड अप. पेड अप मतलब क्या? उसके नाम में उसका मीनिंग है. पेड अप मतलब व्हाट? द अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी इन कैश. सिंपल है कि इन कैश, कैश फॉर्म में कितना? 50,000 बुलाया, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं. तो 50,000 बुलाया मगर कितना आया? 40,000 आया. ऐसे कैसे हो सकता है सर? 50,000 बुलाया तो 50,000 आएगा, 40,000 क्यों आएगा? अरे भाई कोरोना चल रहा है, 5 महीने से सैलरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो जो लोगों ने सब्सक्राइब किया था कुछ लोगों ने पैसे भरे ही नहीं. ओके, छोड़ दो. तो कितना आया? सिर्फ कितना आया? 40,000 आया. और इसके बाद में रहता है अनकॉल्ड कैपिटल. अनकॉल्ड कैपिटल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन इशूड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल. दिस इज एन अनकॉल्ड कैपिटल. क्लियर? क्लियर? बात समझ में आ रहा है? ओके. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इस वीडियो को देखे, समझे. अभी हम क्या करने वाले हैं? देखो, आप उधर है, हम इधर हैं. तो अभी हम क्या करने वाले हैं? व्हाट विल हैव टू डू? विल प्रोवाइड यू नोट्स. या विल प्रोवाइड यू नोट्स. आपको वीडियो देखना है, वीडियो को नोट से क्या करना है? लिंक करना है. और लिंक कैसे करना है ये तो आपको पता है. वो आपकी मतलब, हाँ ओके, समझ गए. तो हम क्या करेंगे? उसको लिंक करेंगे और गूगल क्लासरूम पे आपको भेजेंगे. तो आपको ये वीडियो जो भी रहेगा, मेरा रहेगा या नितिन सर का रहेगा, कल्याण सर का रहेगा, इमरान सर का रहेगा, किसी का भी रहेगा, आपको क्या करना है? उन नोट्स को वीडियो से लिंक करना है. अभी नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज द फर्स्ट वीडियो, ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड ईयर बीकॉम. इन नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई शेयर्स की प्राइस क्या होते हैं. सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.